Good morning, everyone. Today we are going to start polarization of light. Polarization is a wave phenomena. Polarization is a wave phenomena like interference, diffraction, and these three are actually depends upon the electric and magnetic behavior of electromagnetic wave, that is light. Actually, the light is an electromagnetic wave that we have already seen in our previous chapter. So, when we were discussing electromagnetic waves, we have seen this kind of wave which I am going to make here. See here, we have seen this type of figure also. If this direction is x, this is y, and this is z, then we have seen the light is an electromagnetic wave, and the behavior of electromagnetic wave is the combination of electric and magnetic fields. Here, electric and magnetic fields are vibrating in mutually perpendicular direction and in perpendicular from the direction of propagation of the wave. So, if I am considering direction x is the wave of direction of propagation, and consider the electric field vibrating in y direction, so electric field will be in xy plane. So this I am making the electric vibrations, electric vectors vibration. What is electric vector? It is the magnitude of electric field in that particular position. Alright, so it is not the wave, it is the electric vector at that particular points. The height of this vector is actually representing the magnitude, and direction is representing the direction of the vibration. This we have studied in our previous chapter. So this is what? This is the direction of electric field. Generally, the value of the magnitude of the electric vector or the electric field is very much greater than the value or the magnitude of the magnetic field at that particular point. Alright, so magnitude quantity is somewhat very large for electric field as compared to the magnetic field, but their maxima and minima will be produced at the same positions. When the electric field is maximum, at that particular point of time magnetic field will also maximum, and their minima will come at the same position. So one more thing, just because it is electric field, I am writing it. This is E. Just because it is in y direction, I am representing it with EY vector. Alright. Now, for magnetic field, if I am considering the magnetic field in z direction, vibrations in z direction, so it is in zx plane, or we can say xz plane. Alright, so this is xz plane. ऐसा ही होता है ना? कुछ इस तरह? No, this is actually in the direction of zx plane. प्लेन पे ध्यान रखें. Now we have to talk about polarization. So as I have told you, the magnitude of electric field, or we can say, we can write like this: the magnitude of electric field is much greater than the magnitude of magnetic field. So optical phenomena
are usually governed by, or you can say defined by, electric vector only, or you can say electric field only. All right, this is very important. This is, we can say it is BZ. All right, now what is polarization? See, this is electric field, E is vibrating in XY plane. Good. Now consider only the electric field here. मैं उसमें से, चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा है कंपेरेबल टू मैग्नेटिक फील्ड, देन आई एम मेकिंग ओनली द इलेक्ट्रिक डायरेक्शन. E, Y. See, here I am making only the electric field vectors. ठीक है. जनरली ये जो डायरेक्शन है, केवल ये चीज फिक्स होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के जो वेक्टर होंगे वो परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड के वेक्टर होंगे और परपेंडिकुलर होंगे डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन के. लेकिन ये नहीं फिक्स है कि किस दिशा में होंगे, ये आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे. इसका मतलब कि अगर एक सोर्स ऑफ लाइट है, मान लीजिए ये पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट से आपकी तरफ रोशनी आ रही है इधर बाहर की तरफ, तो इलेक्ट्रिक वेक्टर किसी पर्टिकुलर टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम में अगर ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं अप डाउन, तो ठीक उसी समय में या किसी नेक्स्ट समय में, किसी अगर उसी समय में होगा तो उसी एटम्स, चूंकि वहाँ नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, अलग अलग उनके इलेक्ट्रॉन्स से लाइट्स निकलती हैं, है ना. तो वाइब्रेशंस, वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो क्रिएट हो रहा है उसके जो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा है वो ये भी हो सकती है, और उसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में ही इधर भी दिशा हो सकती है इलेक्ट्रिक वेक्टर की, इधर भी दिशा हो सकती है, इधर भी दिशा हो सकती है. ऐसे वाइब्रेशंस अगर ऐसे होगी तो ऐसे ऐसे, ये वाली होगी तो इसका अपोजिट, इस तरह का वाइब्रेशंस यहाँ पे ये. तो इलेक्ट्रिक वेक्टर्स जो वाइब्रेट करते हैं वो इतना तो कंफर्म है कि मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होंगे और म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे प्रोपेगेशन डायरेक्शन के. लेकिन ये नहीं फिक्स रहता कि इलेक्ट्रिक वेक्टर किस दिशा में, क्या केवल ऊपर नीचे ही करेंगे या ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं वाइब्रेट. तो इनका जो डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन है इलेक्ट्रिक वेक्टर का, ये फिक्स नहीं होता, ये मल्टीपल डायरेक्शंस में वाइब्रेट करते हैं. एक नॉर्मल सोर्स से जब लाइट निकलती है, यानी एक वाइट लाइट जब निकलती है, तो वो जो वाइब्रेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसे ऐसे और मैग्नेटिक फील्ड का उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इट इज नॉट फिक्स्ड. सो दिस टाइप ऑफ लाइट विच प्रोड्यूसेस, जनरली एक नॉर्मल लाइट जो होती है वो कैसा सोर्स, कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट कराती है, इस तरह का हर डायरेक्शन में. उसमें से जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट होते हैं ये हर डायरेक्शन में होते हैं, चारों तरफ. ऐसी लाइट्स जो होती हैं जो इस तरह की वाइब्रेशंस देती हैं उनको कहते हैं अनपोलराइज्ड लाइट. अनपोलराइज्ड लाइट. मान लीजिए हम ऐसे सोर्स में बहुत पतली एक ऐसी स्लिट लगा दें, मतलब इसमें से लगातार हर तरफ वाइब्रेट करते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ रहे हैं. अच्छा ये बताइए कि जब हम इस तरह के वाइब्रेशंस ले रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी हो, मैग्नेटिक फील्ड की कैसी होगी, कंसीडर नहीं करते हैं उसको ऑप्टिक्स पढ़ते वक्त. लेकिन अगर होगी तो कैसी होगी, इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए 90 डिग्री डायरेक्शन ये होगी मैग्नेटिक फील्ड की. इधर वाले के लिए अगर बात करें तो ऐसे 90 डिग्री पे होगी. यानी हर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एक 90 डिग्री पे मैग्नेटिक फील्ड भी वाइब्रेट करता रहेगा. यानी इनका म्यूचुअल परपेंडिकुलर होना जरूरी है और फिक्स डायरेक्शन नहीं है कि यही वाली डायरेक्शन में ही वाइब्रेशन होगा. ठीक है, तो ये तो अनपोलराइज्ड लाइट हो गई. अब अगर हम किसी तरह, हमने क्या किया, इसमें स्लिट लगा के एक पतली सी ऐसी, मतलब कागज के अंदर से कहीं लाइट इस तरह से आ रही है, हमने ऐसे स्लिट लगा दिया कि केवल इतना पोर्शन ही इसमें से पार हो, और यहाँ 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 मैंने पर्दा बना दिया इस तरह से, ऐसे मैंने शेड कर दिया, ढांक दिया.
तो अब वही इलेक्ट्रिक वेक्टर बाहर आ पाएंगे जो ये इस डायरेक्शन में ऐसे परपेंडिकुलर बाहर आ रहे हैं आपकी तरफ, यानी ऐसे करके जो ऐसे वाइब्रेट करते हुए आपकी तरफ आ रहे हैं। ऑलराइट, सो देयर वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक वेक्टर इज रेस्ट्रिक्टेड नाउ। तो अब कैसी लाइट यहां से निकलती नजर आएगी? मान लीजिए ये सोर्स है, अब लाइट केवल ऐसे और ऐसे वाइब्रेट कर रहे होंगे इलेक्ट्रिक वेक्टर। ऑलराइट, एंड all other vibrations are restricted by using a device which I will name later. See here, the vibration of electric vector is fixed. अप डाउन हो गई केवल, वो जो अगल बगल वाले थे उन सबको मैंने छुपा दिया स्लिट लगा के या कुछ ऐसा मटेरियल लगा के, उसके बारे में हम बताएंगे क्या होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक वेक्टर्स बहुत करीब हैं तो उनके लिए ऐसा ही डिवाइस यूज करना पड़ेगा जो बहुत करीब की डिस्टेंस को भी छुपा दे, है ना। तो ऐसे में इस लाइट को जिसकी वाइब्रेशन की डायरेक्शन फिक्स हो गई, इसको कहते हैं पोलराइज्ड लाइट। जिनके इलेक्ट्रिक वेक्टर के वाइब्रेशन की डायरेक्शन फिक्स्ड हो गई, पोलराइज्ड लाइट कहलाई। अब चूंकि ये वाइब्रेशन एक प्लेन में है, इस तरह से है, केवल एक प्लेन में है ना, तो इस वजह से इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल को कहते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट। और ऐसे डिवाइस जिनका यूज करके इस अनपोलराइज्ड लाइट में से जो यहां आपने देखा एक पोलराइज्ड लाइट निकाली जाती है, उनको कहते हैं पोलराइजर। क्या कहते हैं? पोलराइजर। पोलराइजर जो पोलराइज करे। ऐसे डिफरेंट मटेरियल होते हैं। देखिए ये इलेक्ट्रिक वेक्टर्स जो अदर डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे हैं, ये बहुत ही एटॉमिक डिस्टेंसेस पे हैं। तो जनरली हम किसी मटेरियल से बनी हुई स्लिट का इस्तेमाल ना करके स्लिट की जगह क्रिस्टल्स का इस्तेमाल करते हैं। कैल्साइट क्रिस्टल एक मटेरियल होता है, कैल्साइट क्रिस्टल। जैसे क्रिस्टल होते हैं, फिटकरी के क्रिस्टल हो गए, डायमंड क्रिस्टल्स हो गए, वैसे ही कैल्साइट क्रिस्टल होता है। उनका जो एटॉमिक अरेंजमेंट रहता है वो ऐसा रहता है कि उनके बीच में स्पेस रहता है, बहुत ही कम छोटा स्पेस। तो एक एग्जाम्पल आप इसमें लिख सकते हैं कैल्साइट क्रिस्टल। बहुत सारे अदर एग्जाम्पल हैं बट जनरली ये बहुत पॉपुलर है, कैल्साइट। ठीक है ना, कैल्साइट क्रिस्टल। कैल्साइट इज अ काइंड ऑफ पोलराइजर। गुड। सो वी कैन प्रोड्यूस्ड a polarized light using an unpolarized light using a polarizer. All right, समझ में आ रहा है क्या है पोलराइजेशन? जनरली लाइट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स होते हैं वो चारों दिशाओं में वाइब्रेट कर रहे होते हैं, और उसी तरह मैग्नेटिक फील्ड भी रिलेटेड परपेंडिकुलर डिस्टेंस में चारों दिशाओं में वाइब्रेट कर रहे होते हैं। मतलब वाइब्रेशंस तो हैं लेकिन एक डायरेक्शन फिक्स नहीं, वो ऐसे ऐसे भी कर रहे हैं और एट द सेम टाइम वो हर तरफ ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी लाइट अनपोलराइज्ड लाइट होती है। और जनरली एक सोर्स से, सन से या किसी भी सोर्स से एक अनपोलराइज्ड लाइट ही आती है। और वही एक कारण है, जैसे आप रात में कभी ड्राइव करते हैं तो आपने फेस किया होगा कि पहले जो कांच के या अभी भी जो कांच के जो विंड स्क्रीन होती है जो कार की, सामने से अगर कोई बाइक या कार आ रही है तो उससे जो लाइट निकलती है वो काफ़ी ज़्यादा चमकती होती है, तो ड्राइवर सीट पे जो आदमी बैठा है उसको सामने का नज़र नहीं आता। ठीक है, और उसको थोड़ी दिक्कत होती है चलाने में क्योंकि पूरा चमक जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो लाइट सामने से कार से आई वो एक अनपोलराइज्ड लाइट थी, इलेक्ट्रिक वाइब्रेशंस हर तरफ थी, उसका एम्पलीट्यूड या कहते हैं इंटेंसिटी ज़्यादा थी। ठीक है, तो उसको पोलराइज्ड किया जाता है, एक शीट लगाया करते हैं जनरली लोग, नाइट स्क्रीन एक लगवाते हैं। ठीक है, जो एक फिल्म टाइप की रहती है, पोलराइजर फिल्म उसको कहते हैं। ठीक है, तो उसको लगवा देते हैं। तो उससे क्या होता है कि रात में चलते वक्त आपको जैसे सामने से कार आ रही है तो उसका एक छोटा डॉट दिखेगा या फिर कम इंटेंसिटी दिखेगी। तो वो करती क्या है, वो सामने से आने वाली अनपोलराइज्ड लाइट को एक
प्लेन पोलराइज्ड लाइट में या तो फिर एक सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट में बदल देती है। ये सब हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए हम कुछ डेफिनेशंस पे आ जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे बेसिक हो गए जो समझना जरूरी था। देखिए, सो व्हाट इज पोलराइजेशन ऑफ वेव्स? ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट बाय रीडिंग सम डेफिनेशन। A transverse waves in which vibrations are present in all possible directions in a plane perpendicular to the direction of propagation is said to be unpolarized light. All right. Now, if the vibrations of a wave are present in just one direction, in a plane perpendicular to the direction of propagation, the wave is said to be polarized or plane polarized. This we have seen in our previous topic. So we can say the phenomena. What is the polarization of wave? The phenomena of restricting the oscillations of a wave to just one direction in the transverse plane is called polarization of waves. Let's have some example. देखिए, मान लीजिए हम पहचाने कैसे कि कोई लाइट पोलराइज्ड है कि नहीं है। देखिए, मैंने पोलराइजर आपको बताया, इसके बारे में हम बाद में और पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए एक जान लीजिए, पोलराइजर एक क्रिस्टल होता है, एक टुकड़ा होता है एक पत्थर का, जिसके थ्रू लाइट पास कराने पे वो लाइट पोलराइज्ड हो जाती है, क्योंकि उसके जो प्लेन जो अंदर ग्रूव्स बने हैं, मान लीजिए ये है हमारा पोलराइजर। तो पोलराइजर एक एटम से बना हुआ कोई मटेरियल है, इसमें प्लेन्स इस तरह से अरेंज्ड हैं कि इसमें से जो लाइट पास होती है वो अगल बगल से कट जाती है, केवल उसी पर्टिकुलर पोजीशन से बाहर निकलती है जहाँ पे उसको स्पेस मिलता है। और इस वजह से इलेक्ट्रिक वेक्टर एक निश्चित दिशा में फिक्स होकर वाइब्रेट करते हैं और कह देते हैं कि ये लाइट पोलराइज्ड है। लेकिन हम पता कैसे चेक करें कि वेदर इट इज पोलराइज्ड और नॉट? सो दिस आई एम गोइंग टू मेक हियर। कंसिडर, देखो, अब हमें पोलराइज्ड लाइट के लिए बार बार वो नहीं बनाना है कि एक अनपोलराइज्ड लाइट कैसी है, पोलराइज्ड लाइट कैसी है। एक वेव है, कहाँ से निकली? किसी सोर्स से निकली। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो ऐसे ही बनेगी। अब मुझे तो बनाना तो दोनों चाहिए था, दोनों वेव, इलेक्ट्रिक वेक्टर भी मैग्नेटिक वेक्टर भी, पर मैंने केवल एक वेव दिखाया क्योंकि ट्रांसवर्स होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए केवल इलेक्ट्रिक वेक्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि मैग्नेटिक वेक्टर का इस्तेमाल हम नहीं करते हैं क्योंकि उसका एम्पलीट्यूड बहुत ही ज़्यादा कम होता है इसके कंपैरिजन में, ठीक है। अब ये एक अनपोलराइज्ड वेव है, तो इसके लिए एक सिंबल यहां मैं बनाने जा रहा हूं, इस तरह का दिख रहा है। ये क्या शो कर रहा है कि इलेक्ट्रिक वेक्टर की वाइब्रेशंस चारों तरफ है। सो इट इज विच टाइप ऑफ लाइट? अनपोलराइज्ड लाइट। All right, now I am using this. This is a crystal. ऐसा एक सिंबल बनाया करते हैं। ये एक पोलराइजर है, देखिए पतली से स्लिट टाइप का बनाया, जबकि ये स्लिट नहीं है। ये पोलराइजर के अंदर के जो एटम के अरेंजमेंट होने के बाद जो प्लेन बना अंदर, ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। सो इट इज कॉल्ड अ पोलराइजर, ठीक है। अब इसके अंदर से लाइट निकलने के बाद जो बाहर लाइट आएगी वो हमारे हिसाब से कैसी होनी चाहिए? पोलराइज्ड, ठीक है, पोलराइज्ड होनी चाहिए ना। तो ये पोलराइज्ड लाइट है, यानी इसकी इलेक्ट्रिक वेक्टर कैसा बना दें? ऐसा बना दें। अब हमको ये पता कैसे चलेगा कि ये लाइट पोलराइज्ड है कि नहीं है? पोलराइज्ड लाइट, तो इसके लिए हम इसको एनालिसिस करेंगे। क्या करेंगे? एनालाइज करेंगे। तो एनालाइज के लिए हम करते क्या है, एक और यही कैल्साइट क्रिस्टल लगा देते हैं यहां पे। ऑलराइट, दिस टाइप। अब
अब देखिए वो एक प्लेन में पास करने की जगह है, इसीलिए इसको ऐसा दिखाया। एक प्लेन है, दो प्लेन्स के बीच का एरिया है, जब कोई अरेंजमेंट किया एटम्स का तो ऐसे बीच में स्पेस बन गया, ठीक है। उसी स्पेस के अंदर से पास आउट करने देना है लाइट को। अब देखिए हमको पता है कि ये ऐसे वाइब्रेशन करते हुए आएगा, और सेम अगर इसका और इसका पैरेलल प्लेन है, जो पासिंग प्लेन है जिसके थ्रू प्लेन ऑफ वाइब्रेशन है दोनों का, यानी प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन यही है ना जिसके थ्रू ये पास होकर निकला इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इसी प्लेन में वाइब्रेशन दिखा है ना, तो यही वाला है। तो इसका प्लेन ऑफ वाइब्रेशन ये है। अगर दोनों पैरेलल हैं प्लेन ऑफ वाइब्रेशन दोनों के, तो ये इलेक्ट्रिक वेक्टर जो है ये इसी तरह वाइब्रेट करता है, यहाँ पे भी नहीं मिल जाएगा हमको, यानी यहाँ पे एक वेव आउटपुट पे मिलेगा, ठीक है, और एक इल्यूमिनेट करेगा या फिर कहते हैं लाइट जलेगी, है ना। तो वाइब्रेशन प्लेन इलेक्ट्रिक वेक्टर का ऐसा ही रहेगा, ई वेक्टर का, है ना। तो यहाँ पे एक लाइट मिलेगी। अब मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा बदलाव किया। सब कुछ यहाँ तक ऐसा ही सही था कि मैंने इस पहले वाले से पोलराइजर से लाइट निकाला, अनपोलराइज्ड लाइट, और यहाँ पे मुझे एक अनपोलराइज्ड लाइट मिली। मैंने यहाँ पे देखा कि ये एक पोलराइज्ड लाइट है, बट दिस टाइम आई हैव मेड द प्लेन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ दीज टू क्रिस्टल्स at perpendicular. Plane of polarization of this crystal is perpendicular to the plane of vibration of this crystal is perpendicular to the plane of vibration of this crystal. इसको कहते हैं crystal 2, crystal 1. So this time this electric vector which is vibrating in perpendicular direction cannot pass through this. So here we will not get any wave. All right, no wave. All right, so screen would not have any symbol of light. All right, we will get a point, or we can say we will not get anything. All right, so this time we can say हाँ यहाँ पे मल्टीपल वाइब्रेशंस थी अलग अलग डायरेक्शन में, यहाँ एक डायरेक्शन में वाइब्रेशन थी। ये तो कन्फर्म है कि ये वेव यहाँ से पास कर गई थी। अब अगर ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पास नहीं कर पाई, इसका मतलब कि ये वेव का जो इलेक्ट्रिक वेक्टर था एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही वाइब्रेट कर रहा था, ठीक है। अब अगर हम इस वाले एनालाइजर को, इसको क्या नाम दे दिया, चूंकि एनालिसिस किया ना, तो इसको नाम देते हैं एनालाइजर। क्या कहते हैं, एनालाइजर। अब अगर एनालाइजर हमारा हम ऐसे घुमाते जाएं परपेंडिकुलर, तो अभी ये एकदम लाइट नहीं दे रहा है, फिर थोड़ा थोड़ा देने लगेगा, फिर दोबारा जब हम इसको पहली वाली पोजीशन में ले आएंगे, यानी पैरेलल कर देंगे प्लेन ऑफ वाइब्रेशन दोनों का, तब ये फिर से यहाँ पे लाइट देने लगेगा स्क्रीन पे, फिर घुमा दे, यानी इसके एंगल को लगातार बदलने से यहाँ पे स्क्रीन पे लाइट की इंटेंसिटी लगातार बदल रही है। मैक्सिमम कब होती है, जब प्लेन ऑफ वाइब्रेशन दोनों के पैरेलल हों। मिनिमम कब होती है, जब प्लेन ऑफ वाइब्रेशन दोनों के आपस में परपेंडिकुलर हो, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द पोलराइजेशन एंड द ऑब्जर्वेशन, और वी कैन से एनालिसिस ऑफ द पोलराइजेशन। नाउ वन मोर क्वेश्चन इज देयर, कैन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बी पोलराइज्ड? क्या लॉन्गिट्यूडनल वेव पोलराइज्ड हो सकती हैं? तो देखिए वेव्स का पोलराइजेशन डिपेंड किस पे करता है, इलेक्ट्रिक वेक्टर वाइब्रेशंस पे। लेकिन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की डायरेक्शन में तो वाइब्रेशन पहले से फिक्स है ना, किधर रहता है, इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, यानी वहां पे तो डायरेक्शन फिक्स हो गया है, यहाँ फिक्स नहीं था वाइब्रेशन का डायरेक्शन, इसलिए फिक्स किया गया। लेकिन एक लॉन्गिट्यूडनल वेव में डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन इज ऑलवेज फिक्स्ड, दैट इज व्हाई द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कैन नॉट बी पोलराइज्ड। ऑलराइट, नाउ next is what is unpolarized light. So I have one definition I have already shown you. A transverse wave in which vibrations are present in all possible directions in a plane perpendicular to the direction of propagation is said to be unpolarized. अभी पीछे वाली जो पेज था उसको आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो अनपोलराइज्ड लाइट कैसी नजर आती है? उसमें देखिए कुछ भी फिक्स नहीं है, ना ही इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड फिक्स है, ना ही इलेक्ट्रिक
फील्ड के वाइब्रेशन की डायरेक्शन फिक्स है। तो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन तो मैंने आपको दोनों का दिखा दिया, प्लेन पोलराइज्ड लाइट का भी और अनपोलराइज्ड लाइट का भी। तो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन यू कैन ड्रॉ इट ऑल्सो। This is unpolarized light. Here the vibrations are fixed. This is plane polarized light. All right, so it is plane polarized, and this one is unpolarized. One more name is given to this plane polarized light, and this is called linearly polarized light. If the electric field vector of a light wave vibrates just in one direction perpendicular to the direction of wave propagation, then it is said to be plane polarized or linearly polarized light. Alright. Now, if I say, ये तो मैंने अभी प्लेन ऑफ द पेपर में बना दिया, पेपर के प्लेन में है ना। अगर मैं कहूँ आपसे कि इसी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर वाइब्रेशन कैसे दिखाओगे, तो आप कह दोगे सर ऊपर तो एरो बन नहीं पा रहा है। तो आगे हम सिंबल जो यूज करेंगे वो कुछ इस तरह का यूज करेंगे। यहाँ वाइब्रेशन को अगर अपनी तरफ दिखाना है कि मतलब ऐसे ऊपर उठ रहा है, ऐसे नीचे आ रहा है, इस तरह से, ऐसे ऐसे, इस तरह का वाइब्रेशन, तो उसके लिए ये ऐसे, then we can say it is plane polarized light with E vector vibrations perpendicular to the plane of the paper, perpendicular to the plane of the paper. All right, so this is the representation when vibration is perpendicular. This is when vibrations are in the plane of the paper, and this is for unpolarized light. Next we are going to study polarizers and different type of polarizers, laws related to this polarization. All right, and then we will end this chapter. All right, thank you.